Minister Narendra Modi, an all-out attack at the Congress government, Baghel government in Chhattisgarh. Congress has led India to poverty. These are remarks of Prime Minister at that public rally in Chhattisgarh, a poll-bound state. You heard him list out the issues that were raised based on with regards to caste census, specifically speaking. Prime Minister Modi slamming Rahul Gandhi on caste census data being released, or a request to release caste census nationally. He says the Congress are trying to divide the Hindus and the poor. This is Prime Minister Modi on that stage of Chhattisgarh, where it goes into elections just around the year, end of the year. And you have Prime Minister Modi campaigning hectically right after Madhya Pradesh and Rajasthan. He's now landed in Chhattisgarh, laid a foundation stone to projects worth 26,000 crores. And while he speaks on that public stage, he fires at the Congress on the caste census demand that they make. Also spoke extensively about the Baghel government on its misses in the last 5 years. Prime Minister Modi there highlighting how caste reservation demand put forth by the Congress party is a bid to divide India and to divide Hindus in particular, saying that this is anti-poor, anti-Hindu. And here you have Prime Minister, while speaking on that stage, using every opportunity, even though this was an opportunity where he laid a foundation stone to several developmental projects, but this was all political pot shots taken at the opposition. You had, or rather at the Baghel government in Chhattisgarh, saying how it's in the last 5 years not worked towards the poor of the state, haven't done much in terms of development, and specifically speaking of Rahul Gandhi's caste census demand, saying that this is a bid to divide Hindus and divide the poor. Prime Minister Modi is in Chhattisgarh. He's had marathon meetings, one after the other, public rallies rather, where he's first landed in Rajasthan, then in Madhya Pradesh, and now in Chhattisgarh. He took every opportunity today to fire at the Congress, be it in Chhattisgarh and Rahul Gandhi at large, about the caste census demand that the Congress has been making. What happened, the caste census that was released in Bihar. There's now huge clamor and almost a campaign of sorts by the Congress asking for a caste census that was done by the BJP itself, a survey that was done years ago, data of which to be released. Prime Minister Modi says that caste census is nothing short of dividing India. Let me cut across to Himanshu Mishra joining us for more. Himanshu, tell us on Prime Minister Modi's direct attack on Rahul Gandhi, the Baghel government, of course, but spoke extensively about the caste census demand put forth by the opposition, saying that this is a tactic to divide Hindus and will not benefit the poor in any way. देखिए, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कास्ट सेंसस को लेकर जो है न सिर्फ इंडिया गठबंधन को लेकर टारगेट किया, उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि कास्ट सेंसस से वो लोगों में जो है डिवीजन होगा, जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर टारगेट किया था। साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की जो सरकार है उसको टारगेट किया, राहुल गांधी की वो सिर्फ कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ की जो मूल भावना है उसकी उपेक्षा कर रही है और छत्तीसगढ़िया जो कल्चर है उसको उस तरीके से नहीं बढ़ा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है भूपेश बघेल सरकार में, ये एक बड़ा कारण है इस सरकार के जाने का। जी, बघेल गवर्नमेंट के बारे में क्या क्या कहा है? he's fired at the Congress government in Chhattisgarh, saying this is a government full of corruption and crime. कहना है कि ये एक भ्रष्ट सरकार है और ऐसी सरकार कभी जो है वो नहीं देखी है जो भ्रष्टाचार में जिस तरीके से संलिप्त रही हो और लगातार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हो या नेता, उनसे पूछताछ की गई है, जांच जारी है। और ये भी कहा कि जो भूपेश बघेल सरकार है
वो अपनी पार्टी की ज्यादा चिंता करती है, ना कि छत्तीसगढ़ की चिंता। यहाँ पर मोदी जी ने पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ मैराथन रैलीज उन्होंने लाइन अप किया है बैक टू बैक, और इनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन भी उन्होंने आज इनिशिएट किया था। 26,000 crores worth projects that have been lined up for छत्तीसगढ़, उसके बारे में प्लीज कहिए। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि सरकारी दौरे पे भी हैं और लगातार जिन राज्यों में चुनाव है वहां जाकर जो है कई परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, और आज छत्तीसगढ़ में उनका दौरा है और लगभग 26,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका जो है फाउंडेशन ले जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। ये कई योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर से को देखते हुए इस तरीके की योजनाओं की घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है, और उनके लिए जो फंड है वो सैंक्शन किया गया है। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए, जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन चुनावी राज्यों में जा रहे हैं उन चुनावी राज्यों में इसी तरीके की जो है डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड योजनाओं का जो है शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, या जो है उनका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि जो विधानसभा के चुनाव है वो डेवलपमेंट पे और लड़े जाएं, ना कि जो है वो जाति पे लड़ा जाए। जी, ये कास्ट सेंसस के बारे में कुछ कहिए। बहुत एक्सटेंसिवली बात किया प्राइम मिनिस्टर ने, बोला कि ये कास्ट सेंसस जो है एंटी पुअर है और हिंदूज को डिवाइड करता है, यही इच्छा है ऑपोजिशन का। उन्होंने राहुल गांधी के जो कमेंट्स है उसको कोट करते हुए कहा है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कास्ट सेंसस को लेकर ये सवाल उठाए। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये जातियों में बांटने का काम जो है वो विपक्ष करना चाहता है। अब जब बिहार की तरफ से कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज किया गया है तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है ये हिंदुओं के बांटने का काम है, और इससे जो है गरीबी दूर नहीं होगी और जातियों में लोग जो है वो बट के रह जाएंगे। और इसीलिए उनका ये मानना है कि कास्ट सेंसस को लेकर जो भी बात विपक्ष कर रही है वो ठीक नहीं है, इससे लोग बटेंगे जातियों में और इससे किसी गरीब का फायदा नहीं होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि अगर गरीब का फायदा करना है तो आपको जो है धरातल पर जाकर काम करना होगा और उन कामों को करना होगा जिनसे गरीब को फायदा हो। कास्ट सेंसस से किसी भी जो है गरीब को फायदा नहीं होने वाला है, इससे लोग जातियों में ज्यादा बटेंगे। हिमांशु, यहाँ पर जो मोदी है छत्तीसगढ़ में अभी पोल बाउंड स्टेट पे है, इनका बीजेपी को कुछ उनका टैली इंक्रीज करना है। जब मोदी आता है छत्तीसगढ़ में तो इनके काडर कितने मोटिवेट होते हैं। We know that Modi has that effect in every other state. A poll-bound state, he usually manages to motivate and boost the grassroots cadre of the BJP. In Chhattisgarh, the chances for the BJP, and with Modi's arrival there and his speech, how far does that boost their chances? देखिए, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने हैं जिनमें बीजेपी 4 मूलतः स्टेट्स में प्रोमिनेंट चुनाव लड़ती नजर आ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान है और तेलंगाना। इन चारों स्टेट में पार्टी ने किसी को भी जो है सीएम पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन ये कहा है पार्टी ने कि चुनाव बाद तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। राजस्थान में भी ये किया, छत्तीसगढ़ में भी पार्टी की यही योजना है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी चुनावी राज्य में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे होने के नाते उनके जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, उसका मनोबल बढ़ता ही है। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है, पिछले कुछ चुनावों में 2014 के बाद से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से एक इन्फ्लुएंस जरूर होता है और पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल भी बढ़ता है और वो ज्यादा शिद्दत से जो है चुनाव में जुटता भी है। इसका फायदा कई बार पार्टी को मिला भी है। पिछले कई चुनाव में अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए प्राइम मिनिस्टर के चेहरे को ज्यादा आगे रख के चुनाव लड़ती है, तो इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। न सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश आता है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मोदी के कारण जो है फ्लोटिंग वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाता है, जिसका फायदा चुनाव में उनको कई बार मिला है सीटों के रूप में जीतने में।